Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, this is Syed Malik, and in this video we are going to solve fifth problem of final account, and that is from the following particulars prepare profit and loss account as on 31st December 2019. So we just need to make profit and loss account. ये पढ़ते कि immediately हम profit and loss account का format draw करेंगे and the name of the business is missing. So what we need to write the heading profit and loss account of Mrs. Dash. ओनर का नाम क्वेश्चन में नहीं है, मत लिखो. फॉर द ईयर एंडिंग दिस इज अ डेट 31st March 2019 एंड द फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट. अकाउंट जब कभी भी आप बनाते हैं तो DR CR दिस इज मैंडेटरी. ये बनाना ही बनाना है आपको, ये लिखना ही लिखना है, नहीं तो 2 मार्क्स कट होते हैं आपके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज द फर्स्ट आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट. So we will search for the gross profit in the question. It is here and that is 9,000. Profit is our gain. इसका हमेशा credit balance रहता. So directly we will move towards the credit side of profit and loss account and we will write gross profit carried down. Sorry, gross profit brought down. Then after that, on the credit side we need to write all the incomes. So let us see, salaries is our expenditure, rent is our expenditure, stationery is our expenditure, discount allowed is our expenditure, advertisement expenses is our expenditure, commission paid is also expenditure, discount received is our income. So what we will do, directly we will move towards the credit side of profit and loss account and here we will write by discount received, that is 1500. Then after that we have completed all the credit items. ठीक है, क्वेश्चन पूरा हम पढ़ लिए. क्रेडिट आइटम एक था सिर्फ डिस्काउंट रिसीव्ड, दैट इज आवर इनकम. नाउ विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड. सो व्हाट यू नीड टू राइट, द फर्स्ट आइटम, इधर एक परमानेंट आइटम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एंड दैट इज सैलरीज. सो द सैलरीज इज ₹1500. what we need to do, we'll move towards the debit side of profit and loss account and we'll write salaries to salaries. Then after that, rent is our expenditure और हर एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है, एक्सेप्ट ट्रेडिंग एक्सपेंसेस. ट्रेडिंग एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू गुड्स एंड फैक्ट्री. सो ओनली वी हैव टू कंसिडर नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस. So these all are non-trading expenses. What we will do, directly we will move towards the debit side and we will write to rent. Then after that, the next expenditure is stationery, that is ₹500 and discount allowed is our loss. अब ये discount allowed है क्या? Let us understand this. ठीक है, एक कस्टमर के पास से हमको ₹1000 आना था. कितने? ₹1000. बट वी आर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%. सो 1000 का 10% 100 होता. सो व्हाट वी नीड टू डू, ₹1000 की बजाय हमको सिर्फ ₹900 मिलते हैं. सो दिस डिस्काउंट इज कंसिडर्ड एज अ लॉस और हर लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड रिकॉर्ड करना है आपको. सो व्हाट वी हैव टू डू, विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल राइट डिस्काउंट अलाउड. द नेक्स्ट आइटम इज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एंड कमीशन पेड. तो ये दोनों हमारे एक्सपेंसेस है जो कि ट्रेडिंग एक्सपेंसेस नहीं होते. सो व्हाट विल डू, डायरेक्टली विल मूव टुवर्ड्स द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड विल राइट एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1600 and commission paid 700. then after this what we need to do, we need to do the total of both the sides. दोनों साइड्स का टोटल करना है हमको. आफ्टर डूइंग टोटल, ज्यादा कौन सा है कंसीडर करो. So when you do the total, what we'll get, the credit amount is more than the debit. ठीक है, क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है. तो क्रेडिट साइड का टोटल है कितना? दैट इज 10,500. सो व्हाट वी नीड टू डू, जो टोटल ज्यादा रहता है वो हम दोनों तरफ लिख देते हैं, 10,500 and 10,500, right? And after this what we need to do, we need to subtract all these amounts from 10,500. तो जब हम डेबिट साइड का टोटल करे थे उसको 10,500 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारा क्या आता? नेट प्रॉफिट आता. और नेट प्रॉफिट को कैपिटल को हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. सो वी नीड टू राइट टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट. फ्रॉम दिस वी हैव कंप्लीटेड
प्रॉब्लम नंबर 5 एंड देयर इज अ नोट हियर। ये नोट क्या है? अगर क्वेश्चन को आप गौर से देखें तो स्टेशनरी 2 बार अपीयर हो रहा क्वेश्चन में, एक स्टेशनरी को हम इग्नोर कर दिए। सो ओनली वी आर कंसिडरिंग 500, ठीक है। दो जो दूसरी स्टेशनरी है उसको हम कंसिडर ही नहीं करें, नॉट इवन इन दिस क्वेश्चन, राइट। इन टेक्स्ट बुक स्टेशनरी 2 बार दिख रही है आपको, एक को कंसिडर करना नहीं है। So, from this we have completed the fifth problem of final account. In the next video, we'll cover the sixth problem of final account intermediate first year accountancy. Till then, stay connected with Ranks, the Institute of Commerce.